بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹمی سائنسدان اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ جون 1992 کی تپتی ہوئی دوپہر میں ٹنڈو بہاول سندھ کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج اور مقامی کسانوں کے دستے کے ساتھ چھاپا مارا اور بے گناہ لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر جامشورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر ان کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ریسرچ اینڈ اینالائسز ونگ سے تھا۔ یہ بھارت کی طرف سے بھیجے گئے ایک دہشت گرد تنظیم کا حصہ تھے۔ یہ دہشت گرد کوئی عام نہیں تھے بلکہ ان کے سر پر بھارتی سیاستدانوں اور حکمرانوں کی سرپرستی تھی۔ یہ دہشت گرد بہت زیادہ خطرناک تھے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ ہی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جنگیں لڑی جاتی تھی، بلکہ اس وقت صرف طاقتور کی آواز بلند ہوتی تھی، یعنی کہ میڈیا پر طاقتور کا راج تھا۔ جو طاقتور کہتا تھا، میڈیا مالکان اور دیگر تمام ادارے ان کی تائید کرتے ہوئے اسے ہی حرف آخر سمجھتے تھے۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ریسرچ اینڈ اینالائسز ونگ سے تھا۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے تھے، لہٰذا ہم نے انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا اور پاکستان کو دشمن کی طرف سے ہونے والی ایک بڑی سازش سے بچا لیا۔ لاشیں جب گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پورا علاقہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی اور ان کے بین دل دہلا دینے والے تھے۔ اکثر لوگوں کی طرف سے یہ دردناک واقعہ ہو جانے کے بعد خاموشی سے میتوں کو دفنانے کا مشورہ دیا گیا، کیونکہ قاتل بہت طاقتور تھے اور کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ تھا۔ جہاں ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا، ہر عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عورتیں بلند آواز میں روئے جا رہی تھیں اور مرد حضرات بھی روئے جا رہے تھے۔ اس قیامت خیز منظر میں ایک عورت بالکل خاموش کھڑی تھی، جیسے کوئی زندہ لاش ہو، جس کا نام مائی جندو تھا۔ لوگوں نے حیرانگی سے مائی جندو کو رونے کے لیے کہا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا و جزا مل سکے۔ مگر جب جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی اور سیدھی کھڑی ہو کر بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہاں ٹنڈو بہاول دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے کوئی موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اگر کبھی کبھار یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا کوئی دریا میں ڈوب کر مر جاتا تو میڈیا والے دوڑے آتے، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہو جانے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص بھی کیمرہ یا موبائل لے کر ان کی ویڈیو بنانے یا ان کی فریاد سننے یا حقیقت جاننے یا ان کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اور ان کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ الٹا ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ اگر ان کے ایجنٹوں کا پتہ نہ چلتا تو نہ جانے ملک میں یہ لوگ کیا کوہرام برپا کرتے۔ جس نے بھی یہ خبر پڑھی یا سنی اس نے شکر ادا کیا اور ان دہشت گردوں کو مارنے والوں کے لیے دعائیہ کلمات بھی ضرور ادا کیے ہوں گے۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا، اس وقت مائی جندو ان طاقتوروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر سڑکوں پر نکلنے لگی تو اہل علاقہ اور دیگر تمام لوگ جو مخالف کی طاقت اور اس کے روب و دبدبا کو جانتے تھے، انہوں نے مائی جندو کو سمجھایا کہ خدا کے لیے تم ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ، تمہاری 2 جوان بیٹیاں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دے کر بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بیٹے تو آپ پہلے ہی گوا چکی ہو، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ بیٹیاں بھی گوا دو اور اتنا بڑا خسارہ ہو جانے کے بعد تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کرو اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ وہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل کرے گا۔
माई जंदो ने तारीखी अल्फाज कहे कि तुम में से कोई भी शख्स अगर मेरे साथ ना चलना चाहे तो मुझे ना नाराजगी और ना ही एतराज है, लेकिन क्या खुदा नहीं देख रहा कि मैं कमजोर हूँ? क्या वो नहीं जानता कि मुझ पर जुल्म के पहाड़ टूट चुके हैं? मेरे लखते जिगर जिन्होंने आज तक मक्खी नहीं मारी थी, इनके माथे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर इन्हें इबरतनाक मौत मार दिया गया। मेरे मासूम फूलों को किस कदर बेदर्दी से कुचल दिया गया। खुदा नहीं जानता कि मैं फिर भी उसका शुक्र अदा करते हुए इस्तकामत और सब्र से काम लेते हुए आंख से एक अथरू भी ना बहाया। मैं खुदा की रजा में राजी हूँ, लेकिन जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, मैं उन जालिमों के खिलाफ आवाज जरूर बुलंद करूंगी। मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगी और मुझे खुदा पर यकीन है कि वो मुझ बेसहारा का सहारा जरूर बनेगा और मुझे इंसाफ दिलवाएगा। मैं क्यों कर हाथ पे हाथ रख कर घर बैठ जाऊं? क्या मैं अपने बेटों को शहीद होने के बावजूद दहशतगर्द की अलामत समझूं? लोग मेरे बेटों को शहीद और मजलूम होने के बावजूद दहशतगर्द समझें? हरगिज नहीं। जो मेरे बस में है वो मैं जरूर करूंगी, आगे खुदा की मर्जी, क्योंकि मुझे यकीन है कि खुदा बेसहारों को अकेला नहीं छोड़ता। खुदा इनको आखिरत में जरूर पकड़ेगा, जरूर इनको इनके किए गए हर अमल की इबरतनाक सजा देगा, लेकिन इस दुनिया में भी इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं आवाज जरूर बुलंद करूंगी, चाहे मेरी बेटियां तो क्या, मेरी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। मैं इन ताकतवरों पर पत्थर जरूर बरसाऊंगी। तब माई जंदो ने एहतजाजी चीख मारी। इस चीख ने प्रिंट मीडिया की समातें चीर कर रख दी। माई जंदो बूढ़ी थी और जिस्मानी लिहाज से कमजोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। इसने इतना बड़ा जिगरा किया और माँ सिवाय खुदा की जात के किसी पर भरोसा किए अपने कंधों पर बंदूक रखकर जालिमों की तरफ रुख कर लिया। इसने अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। शुरू में जब मकामी लोगों ने देखा तो अफसोस के सिवा कुछ न कहा, क्योंकि वो जानते थे कि माई जंदो का ये एहतजाज किसी काम ना आएगा, क्योंकि इसका मुकाबला उस वक्त के मुल्क के फिरौनों से था। खैर, सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में ये जंग जीतना तो दूर की बात, इस जंग के लिए आवाज उठाना भी आसान ना था और मीडिया पर किसी गरीब की आवाज बुलंद होना या किसी गरीब की आवाज बनने की किसी में जुर्रत नहीं थी। मगर खुदाए हक के सहारे नकारे बज चुके थे, कश्तियां जल चुकी थीं और वापसी मुहाल थी। अखबारों और साफियों के हमरा माई जंदो ने अपनी चीख को ताकती मराकज के सीनों में घोंप दिया। पहली झड़प खत्म हुई और गर्द छटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का इनके साथ जरई जमीन का झगड़ा था। यानी मेजर अरशद जमील का इनसे इस जगह की वजह से जाती इंतकाम और झगड़ा था, जिसकी सजा में इन्हें कत्ल होना पड़ा। यह खबर जिस भी इंसान के कानों तक पहुंची, जिसने अपनी आंखों से देखी, इसकी आंखें भी बेसाख्ता नम जरूर हुई होंगी। जुलाई 1992 को जब माई जंदो की आवाज ऐवान बाला तक पहुंची तो जनरल आसफ नवाज ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें यह मामला जेरे गौर आया और जनरल आसफ नवाज ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और इसके साथ मुलव्वस 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सिपा सालार ने रहम की अपील 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद कर दी। इसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद हुई, लेकिन सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। मेजर के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मा सदीकी ने हुक्म इम्तना जारी किया और सजा रोक दी। सजाए मौत पर अमल न होने पर 11 सितंबर 1996 को माई जंदो फिर मैदान में निकली और ऐवाने बाला तक सुर्ख खोलती आंखों से दिल बर्दाश्ता होकर एक नए जोश के साथ अपनी आवाज बुलंद की कि मैं उस वक्त तक चैन का सांस नहीं लूंगी जब तक मेरे बेटे के कातलों को इनके किए गए जुर्म की सजा नहीं मिल जाती। कोई किसी भूल में ना रहे जब तक मैं अपनी आंखों से अपने बेटों के कातलों को फांसी पर लटकते नहीं देखूंगी। मैं ना खुद सुकून से बैठूंगी और ना ऐवाने बाला को सुकून से बैठने दूंगी। मैं हर नगर हर डगर पर चलते हुए अपने बेटों के कातिलों को इनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लूंगी। इसी दौरान दोबारा फिर से
अहले इलाका के जरिए माई जंदो तक धमकियां पहुंचाई गई कि तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को अगवा कर लिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन माई जंदो ने कहा जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। बगैर किसी की परवाह किए माई जंदो फिर मैदान में निकली तो इसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने तेल छिड़क कर खुद को आग लगाकर जान दे दी। मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया, एहतजाज होना शुरू हो गए। माई जंदो एक बड़ी रैली निकालने का ऐलान कर चुकी थी। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी। मुल्क के एक अदना से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक सब हैरानो परेशान हो चुके थे कि हालात किस जानिब को जा रहे हैं, क्योंकि ये भड़कती हुई आग एक छोटी सी जगह से शुरू होकर कहीं पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ना ले ले। क्योंकि ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक छोटे से कबीले में लगाई गई आग इतना बड़ा शोला बनकर उभरेगी कि पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। पूरे मुल्क पर इसके असरात जा सकते हैं। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गईं। इसकी दुआएं रंग ले आईं। इसका एहतजाज अपने मकसद को पहुंच चुका था और आखिरकार हैदराबाद सेंट्रल जेल में माई जंदो को लाया गया। सामने तख्तादार पर इसके गांव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद जमील खड़ा था। तख्तादार खींचा गया और कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म झूल गया। सामने खड़ी माई जंदो की बूढ़ी मगर जोरावर आंख से एक अशक निकला जो इसके रुखसार की झुर्रियों में तहलील हो गया। माई जंदो ने सजदा शुक्र अदा किया और पूरी दुनिया के गरीब मजलूम लोगों तक अपने अमल से जीती जागती मिसाल कायम करते हुए ये पैगाम पहुंचाया कि जब आप पर कोई भी शख्स जुल्म करे, कोई भी ताकतवर आप पर बेजा जुल्म ज्यादती करे, आपको दबाने की कोशिश करे, तो अगर उस वक्त आप जालिम के सामने बजाय मजलूम बनने के खड़े हो जाएं, उसकी आवाज से ज्यादा ऊंची आवाज में चीखें तो अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। और जब आप हक पर हों और कोई भी आपका साथ दे या ना दे, कोई भी शख्स आपकी आवाज बने या ना बने, इससे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी जंग खुद अकेले लड़ना है। चाहे आपके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, कोई बड़ा से बड़ा फिरौन ही क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि जंग जब लाजिम हो तो मद्दे मुकाबिल नहीं देखा जाता। और अगर उस वक्त कमजोर अपने हक पर होते हुए डट जाए तो अल्लाह ताला इसको फतह से हमकिनार जरूर करता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि खुदा भी आपकी मदद तब ही करेगा जब आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, अपने हक के लिए निकलेंगे। माई जंदो ने यह साबित कर दिया कि बड़े काफिले होने की जरूरत नहीं, लोगों की भीड़ और बड़ा हजूम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हक पर होते हुए अगर आप तन्हा भी निकल जाएंगे तो काफिले खुद ब खुद बनते जाएंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप रात से लड़ाई करते रहें और सवेरा ना हो। और आखिर में हकीकी माँ और हक की सदा देने वाली, जालिम के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाली, जालिम को इसके अंजाम तक पहुंचाने वाली इस माँ माई जंदो हिम्मत, हौसला, अज़म की मिसाल माई जंदो को दुनिया के तमाम कमजोर और मजलूम सलाम करते हैं, जिसने अपने से करोड़हा गुना ताकतवर फिरौन के मुंह पर ऐसा तमांचा मारा जो कयामत तक याद रखा जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से चूर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तुर्कश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। खुदा की लाठी बेआवाज है, खुदा जालिम की रस्सी ढीली तो कर सकता है, लेकिन जब खींचता है तो बड़े बड़ों को इबरत का निशान बना देता है। जिंदगी में ये कोशिश नहीं बल्कि यकीनी बनाएं कि आपके हाथ से किसी भी कमजोर, किसी भी माड़े पर कोई जुल्म ना हो, कोई ज्यादती ना हो, क्योंकि माड़े और कमजोर की तरफ अल्लाह होता है। और जब कोई कमजोर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है तो बड़े से बड़ा शख्स अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाता है।